Hi everyone, welcome back to Nuskit and in this video we'll be talking about depth first search. So previous videos में हमने काफ़ी सारे BFS based questions किए and from this video onwards we'll be starting questions and concept of DFS, right? So let's try to understand how we can actually apply a DFS on a graph, on a matrix and all of these things, right? So I'll be starting with, by considering a simple graph, right? I'll be starting with a simple graph. So let's say we have a graph. So let's say this is a very simple graph that I have, right? So if I simply try to build the edges, like how we would be given the edges in this particular graph. So 0, 1 will be one edge, right? Then another edge would be like 0, 2. And then third edge would be like 1 and 2. Then the fourth edge would be 1, 3. And then other would be like 1, 4. And then it would be 2, 5. And then I think it would be 3, 4. And then it would be 3 and 5, right? So this is how. So let's count them. So I think 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. So let's say there are 8 edges and you already know, like if we are given set of edges, then how do we create this graph? So this is a human readable graph, but I have already told you that we need to create an adjacency list. So this is the adjacency list that we have, right? Now, if you remember the concept of BFS, so in BFS, we used to have a source node and we were putting that source node into my queue, right? And then we were deleting this source node from the queue and then we were iterating the neighbors. And from where we were getting the neighbors, we were getting the neighbors from this particular adjacency list. Exactly in a similar way, we will do the same thing over here as well. The only difference will be there that this time we won't be having this particular queue, right? But we will be having a source node and we will start processing this particular graph, these number of nodes from that source node only, but in a recursive fashion, right? Let me just give you an idea of this, how we would do that. Okay, so let's say this is the graph. Now, how would I basically start processing this graph? So it's very simple. Let's say I'm starting with the node 2, right? I'm considering as a source node, like as a source node as 2, right? So I'll be starting from this node. Okay, so this is my source node. Okay, great. So now what I'll do, I'll simply take, okay, one visited array I will have to take because it is possible that, let's say from 2, if I'm visiting 0. So it is possible because 0 is also neighbor of 2 and 2 is also neighbor of 0. So it is possible that once again I can iterate 2 from 0, right? So for that I will be taking a visited array. So let's mark a visited array. Okay. So this would be like 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Initially everything is false. Fine. Now I'll be starting with 2 and now what I'll do, just try to listen to me very carefully. From 2 I will fetch the list of all the neighbors, right? And I will be going into the depth. Okay, that's why it is known as depth first search, right? So from 2 I'll say, okay, who are your neighbors? I'll get this particular list and in this list I will get 0 as a first element. That means from 2 I will make a move to 0 and I will visit this 0 if it's not visited, right? If it's not visited. One more thing, because you have already visited 2, so let's mark this 2 as visited already, right? And now from 2 I am getting this particular list. In this particular list, I'm getting the very first element and I'm checking if it's not visited. If it's not visited, I'll simply go there. I'll mark it as visited now, right? That means now you can actually mark 0 as well, visited. Okay, great. Now from 0, just try to understand, we are not iterating this graph in a breadth first search fashion, right? We are iterating this graph in depth first fashion, right? That means from this current node, I will make a move to the depth, in depth. So in depth by mean like, because from 2 I have moved to 0. Now I have eventually moved to the 0. Now I am at 0, right? In breadth first search, what we were doing, from 2, if we have 3 possibilities, 0, 1, 5. So first I was visiting 0, then I was visiting 1 and then I was visiting 5 as well, right? But at this moment, if I'm at 2 and if I have visited 0, then from 0 now I will visit into depth, right? So from 0 now I will make a move to 1, right? From 0 I will make a move to 1. If it's not visited, I will mark it as visited and I will mark this 1 as visited. Great. Now from 1, I am at 1 now. So I am at now 1. So from 1 now, who is the, let's get the list of the neighbors. So I'll get the list of neighbors. So first neighbor is 0. So I cannot visit it because it's already visited. Then I will go to 2. So 2 is already visited, I cannot visit it. Now from 1 I will get the next neighbor, which is 3. So 3 is not visited yet. That means from 1 I will make a move to 3, right? So from 1 I will make a move to
3 and I'll mark this 3 as visited if it's not visited. So yes, definitely it's not visited. Let's mark it as visited, and now it's visited. Now I am actually at 3. So now I am at 3. I am at 3 now, right? So from 3 now, when you are standing at 3, you will get the list of neighbors. So the neighbor list is 1, 4 and 5. So 1 is already visited. I will not visit it. Next neighbor is 4. So now let's make a move to 4 because 4 is not visited yet. And I will mark this 4 as visited, right? I will mark this 4 as visit. Great. Now I am at 4. So now you are at actually 4. Now you are at actually 4. Now from 4, you will get the list of neighbors. So you will get the list of neighbors as 1 and 3. So you can see that 1 is already visited, 3 is already visited. So that means you will not be able to move, or you can say like you will not be able to visit anything from 4. That means you will say that function, you told me to visit all my neighbors. I am not really able to visit any particular neighbor. So I am coming back to you. So this 4 will go back from where it was called, right? So it was called from 3. When you were at 3 and you were visiting 4, so eventually when you visited 4, you now came to this particular 4. तो जब आपने 3 से 4 को विजिट किया था तो आप 4 की डेप्थ में चले गए थे. अब जब आप 4 की डेप्थ में गए, तो 4 की डेप्थ से आपने देखा कि ना तो आप 1 को विजिट कर सकते, ना आप 3 को विजिट कर सकते, तो आप वापस चले जाओगे वहीं पे, राइट? तो यू विल कम बैक टू दिस 3 नेबर्स लिस्ट एंड नाउ इवेंचुअली यू विल ट्राई टू explore the next neighbor. So this 5 will be visited from 3 only, right? If it's not visited. So yes, it's not visited. So now what you'll do, you will simply go to 5, you will mark it as visited, and now once you visit this 5, now you are at actually 5. अब आप 5 पे हो. अब जब आप 5 पे हो, बिकॉज 3 ने आपको 5 पे भेज दिया, जब आप 5 पे हो तो 5 से आप नेबर्स के लिस्ट को गेट करोगे, एंड नेबर्स के लिस्ट में है 2 एंड 3. सो आप 2 को विजिट करने का ट्राई करोगे, नहीं कर पाओगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी विजिटेड. यू विल ट्राई टू विजिट 3, देन यू विल नॉट बी एबल टू विजिट 3 बिकॉज 3 इज ऑलरेडी विजिटेड. दैट मीन्स 3 ने आपको 5 पे भेजा था, 5 ने बोला कि मैं अपने सारे नेबर्स को विजिट कर चुका हूं, आई एम रियली नॉट एबल टू विजिट एनीथिंग, सो आई एम कमिंग बैक टू यू. तो ये 5 अपना वापस 3 पे चला जाएगा. अब 3 बोल रहा है कि मेरी भी पूरी लिस्ट कंप्लीट हो चुकी, क्योंकि मैंने 1 पे ट्राई कर लिया, मैंने 4 पे भी ट्राई कर लिया, मैंने 5 पे भी ट्राई कर लिया, राइट? सो वंस दिस लिस्ट इज कंप्लीटेड, नाउ 3 विल गो बैक फ्रॉम वेयर इट वाज कॉल्ड. तो 3 को किसने कॉल किया था? 3. देखो ध्यान से, तो देखो 5 वापस चला गया 3 पे, ठीक है, और 3 ने 4 तो वापस आ ही चुका था, ठीक है, 4 तो वापस आ ही चुका था. देन उसके बाद 3 ने 5 पे कॉल किया था, 5 भी वापस आ चुका. अब 3 बोल रहा है कि मैंने अपने सारे नेबर्स को कवर कर लिया है, तो आई एम कमिंग बैक टू यू. तो ये 1 पे वापस चला जाएगा. देखो 3 1 की लिस्ट पे वापस चला गया. अब 1 की लिस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई है, 1 अभी भी इटरेट कर रहा है, ठीक है. तो 1 इज इटरेटिंग 0, सॉरी 1 इटरेटेड 0, 1 इटरेटेड 2 एंड देन 1 इटरेटेड 3. नाउ 1 3 के बाद किस को इटरेट करने का कोशिश करेगा? 4 को. तो अब ये 1 4 को ट्राई करेगा इटरेट करने का, बट इट विल से कि मैं तो ऑलरेडी विजिटेड टू. दैट मींस दिस इज नॉट अ वैलिड कॉल. तो ये 4 पे नहीं जाएगा, राइट? ओके, नाउ 1's लिस्ट इज ऑल्सो कंप्लीटेड. 1 की भी पूरी नेबर की लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है. तो 1 अब वापस आएगा. तो 1 को किसने कॉल किया था? 1 को कॉल किया था 0 ने. तो 1 भी अब वापस 0 पे चला जाएगा. एंड 0 की लिस्ट में नेक्स्ट नंबर पड़ा था 2. सो वो 2 बोलेगा कि अब देखो 0 2 को विजिट करने की कोशिश करेगा, बट 2 इज ऑलरेडी विजिटेड, यू कैन नॉट एक्चुअली विजिट इट. दैट मींस 0 का लिस्ट भी कंप्लीट हो चुका, और अब 0 वापस वहीं पे चला जाएगा जिसको 0 ने कॉल किया था. किसको 0 ने कॉल किया था? 0 को कॉल किया था इस 2 ने. अब इस 2 की लिस्ट में देखो 0 था, 0 के बाद 1 है, 5 है, तो ये 1 को भी ट्राई करेगा, 5 को भी ट्राई करेगा, बट 1 एंड 5 आर ऑलरेडी विजिटेड बाय समवन एल्स, राइट? तो दैट मीन्स इट विल नॉट बी एबल टू विजिट एनीथिंग, एंड यू स्टार्टेड योर फंक्शन कॉल फ्रॉम 2 इटसेल्फ. तो अब सारे फंक्शन कॉल्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है. सो आई होप यू हैव गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग, हाउ दिस डीएफएस इज बेसिकली वर्किंग. तो अगर मैं आपको सिंपली तरीके से थोड़ा सा एक्सपैंड करके इसको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है. लेट मी जस्ट शो यू. तो जैसे इनिशियली आपने फंक्शन कॉल किया 2 पे, ठीक है. तो फंक्शन ने 2 पे कॉल किया, तो आपने देखा कि अब ये पहला इसकी नेबर्स की लिस्ट में पता है कौन है? इसकी नेबर की लिस्ट में 0, इसकी नेबर की लिस्ट में 1, इसकी नेबर की लिस्ट में 5. तो इसने क्या किया? 0 पे आया और इसने फंक्शन कॉल कर दिया 0 पे, राइट? बिकॉज 0 अभी तक विजिट नहीं हुआ है. जब इसने फंक्शन कॉल किया 0 पे, तो अब 0 विजिटेड है. तो अब क्या होगा? ये लूप चल रहा था, ठीक है. तो लूप में पहला आया तो इसने पहले पे कॉल कर दिया. अब जब आपने फंक्शन 0 पे कॉल किया, तो अब 0 की लिस्ट में देखो कौन कौन है. 0 की लिस्ट में कौन कौन है? 0 की लिस्ट में आपके पास 1 एंड 2, ठीक है. तो ये पहले 1 पे ट्राई करेगा. तो 1 अभी तक विजिट नहीं है, तो ये क्या करेगा? फंक्शन कॉल कर देगा 1 पे, ठीक है. अब जब फंक्शन 1 पे कॉल हो गया, अभी भी 0 की लिस्ट में 1 एंड 2 है, बट उसने फर्स्ट के ही पे कॉल कर दिया, क्योंकि फर्स्ट अभी तक विजिटेड नहीं है. तो डेप्थ में इटरेट करता जा रहा है. अब जब इसने फंक्शन 1 पे कॉल किया, तो 1 की लिस्ट में कौन कौन है? तो 1 की लिस्ट में 0 2 3 4. तो यहां पे 1 की लिस्ट में 0 2 3 एंड 4. तो ये क्या करेगा? ये फर्स्ट 0 पे ट्राई करेगा, बट 0 पे ट्राई नहीं कर सकता बिकॉज इट्स ऑलरेडी विजिटेड. तो ये 2 पे ट्राई करने की कोशिश करेगा, बट 2 पे ट्राई नहीं कर सकता बिकॉज 2 इज ऑलरेडी विजिटेड. तो ये 3 पे ट्राई करेगा. तो ये फंक्शन कॉल करेगा
3 पे, बिकॉज 3 अभी तक विजिटेड नहीं है। तो जब इसने फंक्शन 3 पे कॉल किया तो अभी इसकी लिस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी लिस्ट में कौन कौन है, 1 4 5। तो लेट्स राइट इट 1 4 5, ठीक है, 1 4 5 यहां पे आया। अब ये पहले 1 पे ट्राई करेगा, तो 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है, 4 पे ट्राई करेगा, 4 विजिटेड नहीं है, तो ये फंक्शन कॉल कर देगा किस पे, 4 पे, ठीक है। जब फंक्शन 4 पे हुआ कॉल आपका, तो देखो ये विजिट होते जा रहे हैं, लाइक 1 विजिट हो गया, 3 विजिट हो गया, यहाँ पे 4 विजिट हो गया। अब फंक्शन 4, तो 4 पे कॉल हुआ, तो 4 की लिस्ट में कौन कौन है, 4 की लिस्ट में है 1 एंड 3, 4 की लिस्ट में 1 एंड 3। तो देखो 1 पे कॉल करेगा, 1 इज ऑलरेडी विजिटेड, 3 पे ट्राई करेगा, 3 इज ऑलरेडी विजिटेड। दैट मींस आप ध्यान से देखो, जब आपने फंक्शन 4 कॉल किया तो इस फंक्शन ने कुछ अचीव नहीं किया, तो ये फंक्शन कॉल कंप्लीट हो गई। जब ये फंक्शन कॉल कंप्लीट होगी तो ये वापस भी तो आएगा, क्योंकि एवरी फंक्शन दैट यू कॉल इट हैज टू रिटर्न बैक, राइट। तो ये फंक्शन रिटर्न बैक करेगा। अब रिटर्न बैक करने के बाद आप क्या कर रहे थे, आप लिस्ट पे इटरेट कर रहे थे, आपने लिस्ट पे इटरेट करके ही तो फंक्शन कॉल किया था, तो अब आप लिस्ट पे कंटिन्यू करोगे। तो नेक्स्ट नंबर कौन है, 5, तो अब आप 5 पे कॉल करोगे, तो फंक्शन 5 पे कॉल हो जाएगा आपका। 5 को आप विजिट मार्क कर दोगे। जब 5 पे आपने फंक्शन कॉल किया तो 5 की लिस्ट में कौन कौन है, 5 की लिस्ट में 2 एंड 3, तो आप यहाँ पे 5 की लिस्ट में 2 एंड 3 को गेट कर रहे हो। अब आप 2 पे ट्राई करोगे, 2 इज ऑलरेडी विजिटेड, 3 पे ट्राई करोगे, 3 इज ऑलरेडी विजिटेड। अब जब आपने फंक्शन कॉल किया तो फंक्शन तो कंप्लीट हो गया, तो इट विल रिटर्न बैक। अब जब इट विल रिटर्न बैक, दैट मींस आपने इस फंक्शन 3 के अंदर इस पूरी लिस्ट पे ट्रेट कर लिया, दैट मींस ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। जब ये फंक्शन कंप्लीट हो गया तो इट विल रिटर्न बैक, एंड व्हेन इट विल रिटर्न बैक, तो आप 3 पे थे, अब आप कंटिन्यू करोगे। तो when you will continue to 4, but 4 is already visited because it's already visited when you actually called your function to 3. तो 3 ने जो डेप्थ में फंक्शन कॉल किए थे उसने विजिट कर लिया, तो आप 4 पे भी नहीं करोगे। जब ये फंक्शन कंप्लीट हो गया तो ये फंक्शन 1 कंप्लीट हो गया, इट विल रिटर्न बैक। व्हेन इट विल रिटर्न बैक, तो नेक्स्ट आपकी लिस्ट में 2 पड़ा है, तो आप 2 पे ट्राई करोगे, बट 2 इज ऑलरेडी विजिटेड, तो आपका ये भी फंक्शन कंप्लीट हो गया। तो जब ये फंक्शन कंप्लीट हो गया तो आप यू विल रिटर्न बैक। व्हेन यू विल रिटर्न बैक, तो आप 1 पे ट्राई करोगे, बट 1 इज ऑलरेडी विजिटेड। 5 पे ट्राई करोगे, 5 इज ऑलरेडी विजिटेड, तो आपने स्टार्टिंग में यही फंक्शन कॉल किया, तो अब ये भी कंप्लीट हो गया। तो दैट्स हाउ लाइक योर रिकर्जन इज बेसिकली वर्किंग ओवर हियर इन डेप्थ फर्स्ट सर्च। लेट्स ट्राई टू राइट द कोड क्विकली बिकॉज इट्स वेरी वेरी इजी, राइट। तो मैं यहीं पे कोड लिखता हूं इसका। मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे को एक एज लिस्ट गिवन होगी, ठीक है। तो मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे को एक लेट्स से लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न करना होगा, क्योंकि मुझे डेप्थ फर्स्ट सर्च में मैंने क्या विजिट किया मेरे को वो रिटर्न करना होगा, ठीक है। लेट्स कॉल इट एज डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च, मान लो ये मेरा फंक्शन है और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरे को एजेस गिवन होंगी एंड मेरे को टोटल नंबर ऑफ नोड्स गिवन होगी एंड मेरे को एक सोर्स नोड भी गिवन होगी, ठीक है। मेरे को ये 3 चीज़ें गिवन होगी। लेट मी जस्ट एक्सपेंड इट। तो ये मेरे पास फंक्शन है, इसको कंप्लीट करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बोला कि आप तो एक लिस्ट ऑफ इंटीजर ले लो, क्योंकि वो आपका आंसर है, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ DFS आंसर इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ये आपका DFS आंसर है। फिर आपको एक विजिटेड एरे लेना पड़ेगा, तो लेट्स टेक अ विजिटेड बूलियन एरे। विजिटेड एरे इज इक्वल्स टू न्यू बूलियन, और ये इसका एन साइज रखते हैं हम, क्योंकि हमें 0 से नोड्स गिवन है, तो लेट्स कीप इट एन, ठीक है। इसके अलावा और हमें क्या गिवन होगा, आई थिंक दैट्स इट। ये 2 चीज़ों की हमें जरूरत है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व मेथड कॉल करेंगे, ठीक है। ये सॉल्व मेथड बेसिकली वो फंक्शन है जो मैं रिकर्सिवली कॉल कर रहा हूँ। इसको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, अच्छा एक चीज़ और भी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिस्ट ऑफ, आप उम्मीद है कि आप भूले नहीं होंगे, ठीक है। तो हम एक लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाते थे ग्राफ, और हम एक फंक्शन कॉल करते थे बिल्ड ग्राफ, जिसको हम एजेस की लिस्ट और एन पास करते थे। मैं इस फंक्शन को भी नहीं लिखूंगा बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस फंक्शन, सेम फंक्शन रहने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सोर्स नोड पास कर दूंगा, मैं ये DFS आंसर पास कर दूंगा इसको, बिकॉज हमें ये भरना है। मैं ये ग्राफ पास कर दूंगा और मैं इसको क्या पास करूंगा, और ये विजिटेड एरे पास कर दूंगा, ठीक है। जब आपने सॉल्व फंक्शन कॉल किया, आई एम अज्यूमिंग दैट ये सॉल्व फंक्शन मेरा इस DFS आंसर को भर देगा एंड यू विल रिटर्न बैक दिस, ठीक है। आप इसको रिटर्न करोगे। तो अब इस सॉल्व फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट वॉइड एंड सॉल्व, ठीक है। तो ये हमें कौन क्या क्या चीज़ें देगा, देखो ये हमें एक तो सोर्स नोड देगा, और हमें ये एक ये वाली लिस्ट देगा DFS आंसर, तो इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ये हमें एक ग्राफ देगा, तो इस ग्राफ को यहाँ पे रख लेते हैं, एंड ये हमें ये बूलियन टाइप का विजिटेड एरे भी देगा, तो इसको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें मिलने वाली है हमारे फंक्शन में, ठीक है, ओके। तो नाउ लेट्स ट्राई टू राइट दिस पर्टिकुलर कोड। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो जो भी मेरे को सोर्स नोड मिल रही है, या इसको नोड लिख लेते हैं, जेनरिक बनाते हैं नोड। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मेरे को नोड मिलेगी उसको सबसे पहले मेरे को अपने आंसर में ऐड करना है। तो मैं इसको ऐड कर दूंगा इस नोड को। फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं इसको विजिट कर चुका हूं, तो मैं इस विजिटेड ऑफ नोड को ट्रू मार्क कर दूंगा, ट्रू मार्क कर दूंगा। एंड अब मैंने नोड को ऐड कर लिया अपने आंसर में, मैंने नोड को विजिटेड मार्क कर दिया। अब मेरी बारी है कि मैं उस नोड के नेबर्स की लिस्ट पे इटरेट करूंगा। तो मैं कैसे कर सकता हूं कि फॉर ईच नेबर इन
ग्राफ डॉट गेट दिस नोड, क्योंकि आपको पता है कि ये ग्राफ की इस नोड पे लिस्ट ऑफ नेबर्स पड़ा होगा, तो मैं ग्राफ से गेट करूंगा नोड से, तो मुझे वो लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट पे ट्रेड करूंगा। और मैं तभी ट्रेड करूंगा इफ विजिटेड, अगर ये नेबर, ये करंट नेबर विजिटेड नहीं हुआ है, ठीक है, अगर ये करंट नेबर विजिटेड नहीं हुआ है तभी मैं इसको विजिट करूंगा, लाइक तभी मैं इस पे दूसरा फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन कॉल करूंगा। तो अब नेबर पे मैं फंक्शन कॉल करूंगा एंड बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज रहेंगी। क्या? ये डीएफएस आंसर, ग्राफ और विजिटेड, आपकी तीनों चीजें ऐसी रहेंगी। एंड दिस विल कीप ऑन रनिंग अंटिल ऑल द कॉल्स आर डन, राइट। तो आप यहां पे देख सकते हो, जैसे मैंने आपको पूरा दिखाया कि जब तक जैसे जैसे कोई भी फंक्शन कंप्लीट होता रहेगा इट विल कीप रिटर्निंग बैक, और जब तक ये वापस से सोर्स नोड के फंक्शन कॉल पे रिटर्न नहीं हो जाएगा तब तक ये ऐसे चलता रहेगा, राइट। एंड देन लाइक इन द मेन फंक्शन यू कैन एक्चुअली प्रिंट योर आंसर। तो ये दिस वुड बी द कोड, लाइक दिस वुड बी द कोड। इसके टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो आप कितनी बार कोड चला रहे हो, देखो यू आर एग्जैक्टली कॉलिंग डीएफएस फंक्शन एवरी नोड, राइट। दैट मींस ये डीएफएस फंक्शन कितनी बार कॉल होगा, जितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स है। बहुत सिंपल सा कॉल है। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो दिस डीएफएस फंक्शन विल बी कॉल्ड एग्जैक्टली नोड नंबर ऑफ टाइम्स। एंड इस डीएफएस फंक्शन के अंदर ये लूप क्या है, ये नेबर्स पे लूप चलता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कितने नेबर्स होंगे, अच्छा कितने नेबर्स होते हैं, जितनी एजेस होती है उतने नेबर्स होते हैं, और ठीक है। और नोड्स कितनी बार कितना नोड्स होगा, जितनी भी आपके पास नोड्स गिवन होगी। दैट मींस हर एक नोड के लिए वो अपने अपने नेबर्स पे ट्राई कर रहा है। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर इस एडजेसेंसी लिस्ट को जो हमने यहाँ पे बनाई थी, इसमें अंदर क्या है कि आपके पास 5 नोड्स है, लाइक 6 नोड्स है, एंड यू हैड 8 एजेस। तो लाइक इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आपका ये 6 बार तो डीएफएस फंक्शन कॉल होगा, एंड विद इन ईच ऑफ द डीएफएस फंक्शन कॉल वो अपने अपने नेबर्स पे ट्रेड करेगा, अपने अपने नेबर्स पे ट्रेड करेगा। दैट मींस अगर मैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करूं तो कितना होगा, बिग ऑफ लाइक v प्लस ई, वेयर v इज द नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, एंड e इज द नंबर ऑफ एजेस। बहुत सिंपल सा है, v इज द नंबर ऑफ नोड्स एंड e इज द नंबर ऑफ एजेस, सिंपल, ठीक है। स्पेस की बात करते हैं, आपने स्पेस कितना लिया, देखो आपने एडजेसेंसी लिस्ट भी तो बनाई है, तो एडजेसेंसी लिस्ट को बनाने में कितना लगेगा, टोटल नंबर ऑफ नोड्स एंड टोटल v स्पेस लगेगा, लाइक सॉरी e स्पेस, इफ e इज द नंबर ऑफ एजेस। तो यहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी बिग ऑफ v प्लस e होगी, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी बिग ऑफ v प्लस e ही होगी, ठीक है। अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली सिर्फ डीएफएस फंक्शन की बात करते हो कि डीएफएस फंक्शन कितना लेता है स्पेस, तो वो आपका बिग ऑफ v लेगा। क्यों? क्योंकि उसको v विजिटेड एरे की जरूरत है, ठीक है। तो जितनी नंबर ऑफ नोड्स होंगी उतनी आपको विजिटेड एरे का साइज लेना पड़ेगा। तो ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, दिस इज वेरी वेरी स्पेसिफिक टू डीएफएस एल्गोरिदम ओनली। बट अगर आप ओवरऑल पूरे एल्गोरिदम, पूरे क्वेश्चन की बात करते हो तो बिग ऑफ v प्लस ई ही स्पेस भी होगा, बिकॉज आपने पूरी एडजेसेंसी लिस्ट यहाँ पे बनाई है, ठीक है। तो दिस इज द टोटल, लाइक दिस इज द कंप्लीट कोड, ठीक है। अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं तो लेट मी जस्ट शो इट यू। तो देखो यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक वही सेम ग्राफ ले रखा है जहां पे e नंबर ऑफ एजेस है और यहाँ पे सोर्स 2 गिवन है, राइट। एंड नाउ इफ आई जस्ट रन दिस, और मैं सोर्स को 2 ही मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो let's just first run it and you can see that 201345 we are getting as an answer. और now if I take you to back to this particular example, तो यहाँ पे भी आप देखो कि आपने किस ऑर्डर में विजिट किया था। देखो सबसे पहले आपने किसको विजिट किया था, सबसे पहले आपने इस 2 को विजिट किया था, देन आपने 0 को विजिट किया था, देन आपने इस 1 को विजिट किया था, देन इस 1 के बाद आपने 3 को विजिट किया था, देन 3 के बाद 4 एंड 4 के बाद इवेंचुअली 5। तो क्या ऑर्डर है, 2 0 1, राइट, 2 0 1 एंड देन लाइक 3 4 एंड 5। सो दिस वाज द ऑर्डर ऑफ विजिट। तो इसी ऑर्डर में आपके वो लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स ऐड होते रहेंगे, ठीक है। एंड दिस वाज द आंसर दैट वी वर गेटिंग, यू कैन सी एक्चुअली 2 0 1 3 4 5, this was the same answer. So I hope you have understood this proper algorithm. Time and space will be big of v plus e, where v is the number of vertex and e is the number of edges. So I hope you understood this. I'll see you in the next video. Till then, bye bye.